आराधना हो, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं इस समय। Hallelujah. Just commit ourselves into your hands. Commit this service into your hands right now. In Jesus' name. Hallelujah. Father, I pray for each and every person that is here, Lord, and those that are watching online, oh God Almighty, joining us, worshiping, oh God Almighty. I just commit them all into your hands, Lord. May your blessing flow in their lives, oh God Almighty, in Jesus' name, in a very special way, oh God Almighty. This is our prayer this afternoon, Lord. Hallelujah. Let these praises be like a sweet fragrance unto you, God Almighty. In Jesus' name, I thank you, Father. Thank you, God Almighty. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. तेरे सिवा कोई नहीं, तेरी ही आराधना हो प्रभु। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Your mic is off. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Yes, Lord. We will soar like the eagle of God Almighty. With your power, Lord. In your presence, of God Almighty. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father. We give you all the glory and honor. We give you all the glory and honor. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Blessed be your name, O God Almighty. Blessed be your name, O Jesus.
निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को तूने समझा। कभी कभी हम निराश होते हैं, when we are so sad, we are not able to say anything, we just bottle it up inside. But He knows what is in our heart. We need to just give it to Him. उसको हम दे दे और वो पूरा करेगा हमारे जीवन में। वो ही समझता है हमारे दिल के बात। शायद कोई और नहीं समझेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह समझता है। Amen. Hallelujah. We thank you, Jesus. Blessed be your name, O God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Child
You are my heart's desire. We want to worship you, Lord, in spirit and in truth, O God Almighty. As your word declares, Lord, those that want to worship you, Lord, they must worship you in spirit and in truth. And this afternoon, O God Almighty, as we lift our voice unto you, Lord, as we lift our hearts unto you, Lord, hallelujah, fill us with your presence, O Lord. There is none like you, O God Almighty. There is none like you, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा you, Jesus. There is none like you. We give you all the glory and honor.
Hallelujah, Father, we thank you for loving us so much that you sent your only begotten Son, who suffered and died for us. But it did not end there. He rose up. He reconciled us to you, O God Almighty. And now we can enter into your presence, O God Almighty, and call you Abba, Father. We thank you this afternoon, Lord, for loving us so much. Thank you for your sweet presence, O Lord Jesus. I pray for your abundant blessings upon your children, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 You may be seated. हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से, और हर एक को स्वागत करते हैं। महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो आज हमारे साथ है। Amen. Just want to welcome you all in Jesus' name. Sister Usha, just want to welcome you once again. And there's another sister, I believe you're the one that messaged me that you would be coming. Yes, welcome. What's your name? Asha. Welcome, Asha. You know what Asha means? Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. हमारा आशा परमेश्वर के ऊपर भी है. And we have Asha in our midst this afternoon. So welcome. Hallelujah. Hallelujah. Good to see Sister Swashni and the princess. I like the smile. See? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We were not able to have our services for the last couple of weeks actually in the church. But here we are this afternoon to worship and praise Him. Last week we had a funeral that we had to go to. Actually, my mother-in-law, she used to be a member of our church, and she passed away. And she's in a good place in the presence of the Lord. Amen. And previous week we were in Seattle. We were ministering to Seattle Christian Fellowship. It was a wonderful time in the church, and there was another anniversary service, not sale, service, and it was a good time. Small gathering, but it was the presence of the Lord was there. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In spite of our troubles, in spite of our storms, the Lord is in the midst of it. Amen. How many of you believe that? I believe that. Hallelujah. Thank you, Jesus. और इस समय हम वचन सुनेंगे, और आज के प्रचारक है पास्टर अतीश नारायण from Fiji. आज उसका last Sunday है यहाँ वैंकूवर में, and he's going back, and we don't know when he's coming back, but he's always welcome to come back. And so let's just welcome him. And sister, you want to say something before he preaches? No? Okay. So let's welcome Pastor Atish. He's taking his time to come. Last day, aaj uska. Hallelujah. Thank you, Jesus. मसीह की जय। Amen. सभी को धन्यवाद करता कि अपना समय निकाल कर यहाँ पर आया, और आज ये वचन मैं आप लोग के बीच में जो लाना चाहता है, ये हमारी ओर से नहीं, बल्कि हम विश्वास करता है एक परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा है कि तू जाके बता दो। और आज ये वचन हम आप लोग के बीच में छोड़ना चाहता है, और खुशी की बात है कि हम जाता है अपना देश, और इंतज़ार करता है एक रात्रि और कटेगा। हालेलुया। और जब पादरी साहब ने कहा कि उसके लास्ट संडे है, तो दिल धक्का से कर दी कि सुंदर परिवार, हमारा परिवार आप लोग है। प्रभु यीशु मसीह
के चेले जाके जब कहा, प्रभु तुम्हारे माँ भाई बहन बाहर इंतजार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उस लोग के बताए, हमारे माँ हमारे भाई हमारे बहन वो है जो हमारे पिता की आज्ञा को मानती, जो हमारे पिता पर भरोसा रखते, जैसे आप लोग आज भरोसा करके यहाँ पर आया। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेगा। देखने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, तो हमारे जुबान को अभिषेक कर, ये आत्मा परमेश्वर जो वचन देता है वो तुम्हारी ओर से रे प्रभु। तू हमारे खाली जुबान को इस्तेमाल कर परमेश्वर, हर एक वचन तुम्हारी ओर से, तुम्हारे सुंदर सुंदर लोगों के बीच में जो आज यहाँ पर मौजूद है, महिमा आदर सम्मान तुझे देता पिता। तू ऐसा ही करेगा। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से, आमीन। लास्ट मंथ, बिफोर लास्ट मंथ हम लोग देखा पास्टर 2 संडे कंप्लीट प्रार्थना के विषय में प्रचार करी, और हम बहुत अच्छा लगा कि हम लोग सीखता है प्रार्थना के विषय में। आज मैं भी प्रचार करना चाहता हूं प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना कितना सामर्थ्य है, इज पावर इन द प्रेयर, आमीन। एक सामर्थ्य है। कभी कभी हम लोग के अच्छा समय रहे, हम लोग छोटा से प्रार्थना करके बस चल पड़ता। प्रेयर के पास कोई समय नहीं है। प्रार्थना हमारा कम्युनिकेशन एक है परमेश्वर से, जो परमेश्वर के हम लोग के करीब लेके जाए। प्रार्थना वो है जो चाबी है जो बंद ताला को खोलता है। प्रार्थना वो है जो खुले ताला को भी बंद करता है, आमीन। ये शैतान जो आज हम लोग फ्रीडम दिया हम लोग के जीवन में आए, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करता। और शैतान तब हम पूछता है, काहे हम इतना बीमार रहता? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करता। काहे हमारा दिल नहीं करे बाइबल पढ़ो? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करता। और कभी कभी हम लोग के दिल करी, इतना प्रार्थना करो, इतना बाइबल पढ़ो, इतना परमेश्वर के वचन बताओ। ये तब होता है जब हम प्रार्थना करता है, आमीन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 से हम देखेगा। बुक ऑफ एक्ट्स about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. And suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open, and everybody's chain came loose. आज हम दिखाई मांगता है, इन लोगों के ऊपर तकलीफ आया, इन लोगों को मारा गया, पीटा गया, इन लोगों को हथकड़ी लगाया गया, इनके पैरों को बांधा गया हर एक जगह पर, और इनको डार्क सेल में डाल दिया गया। डार्क सेल वहां है जहां पर तुम अपने हाथ के भी निशानी को नहीं देख सकता है, जहां तुम अपने बगल वाले को चेहरा भी नहीं देख सकता है, बिकॉज वो बिल्कुल डार्क है। इस जगह पर पौल और सिलास को डाल दिया गया, इसलिए नहीं कि वे गलत काम किया, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन उस शैतान से भरी हुई लड़की जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उससे छुटकारा दिलाया। और तुम जानते हो, इन लोगों को वहां पर बंद किया गया। ये लोग, वचन कहता है, पौल और सिलास आधी रात को वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। वे लोग किसी लॉयर की नहीं तलाश किया, किसी व्यक्ति को नहीं खोजा कि कौन हमें छुड़ा सकता है, किसी तरीका को लोग नहीं ढूंढा कि किस तरीके से कितना पैसा खर्च करके यहां से बाहर निकल सकता।
बट वे लोग जानता रहा कि प्रार्थना ही एक रास्ता है, और वे प्रार्थना कर रहे थे। और आधी रात के आधे लोग सुन रहे थे। यहां पर यह प्रार्थना सिर्फ पौल और सिलास को नहीं छुटकारा दिलाया, बल्कि सुनने वाले लोगों को भी, उस प्रिजन वार्डन को भी छुटकारा मिला जो इनकी रखवाली करता रहा। और पौल और सिलास प्रार्थना में लगा रहा, भजन को गाता रहा। वचन कहता है कि अचानक से भूकंप आया और हर एक एक दरवाजा फट गया, हर एक दीवार खुल गया, इनके चैन जिनसे बंधा था वो खुल गया। मैंने कहा कि प्रार्थना वो चाबी है जो बंद ताला को खोलता है, और ये चाबी उन लोगों के पैर के लॉक, हाथों के लॉक छुड़ा दिया। ये लोग देखा इनके हाथ बंद है, इनके पैर बंद है, इनके कमर बंद है, इनके दरवाजा बंद है, इनके खिड़की बंद है, लेकिन ये लोग जानता रहा इनके मुंह नहीं बंद है। उसी जुबान से खोल के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता। आज ऐसे संकट हमारे ऊपर आ जाए तो हमारे पूरे परिवार दौड़ना शुरू कर देगा कि हम किस तरीका से इस प्रिजन से इसको बाहर कर सकता, किस रास्ते से हम छुड़ा सकता। कौन इस प्रिजनर को चिंता है? बल्कि पौल और सिलास वे प्रार्थना के द्वारा खुद ब खुद, और जब दरवाजा खुला, जो वार्डन था, उन दिनों में ये कानून था, रोमन कानून था कि अगर कोई प्रिजनर भाग जाए तो उसको एक एक उंगली करके तोड़ता रहा लोग। जो वार्डन देखा कि शायद ये लोग सब कोई भाग गया है, और इसके कारण मुझे तड़प तड़प के मरने से अच्छा है क्यों ना मैं पहले से अपने आप को भाला मार के मर जाए। जो आप लोग देखा होगा, ब्रदर सलीम नहीं रखे, पंजाबी लोग रखे, हालेलुया, वो लोग रखे निकाल के, और कुछ भय तो सीधा आते हुए मसाला, वो चीज इनके पास था। मगर पौल और सिलास यहाँ कहता है कि तू अपने आप को हानि नहीं करो, हालेलुया, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। आज हम लोग देखता है जब हम लोग के प्रार्थना के समय आए, हम लोग कम समय देता है परमेश्वर के लिए प्रार्थना में, ज्यादा समय हम लोग दुनिया के स्टोरी सुनने के लिए हम लोग समय देता है। आज हम लोग देखता है जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना में लगा है, अच्छे अच्छे जो प्रार्थना नहीं करता है, अच्छे अच्छे परिवार बिखर गए हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के बिजनेस बंद हो गए से, अच्छे अच्छे लोग जो जिसके बड़े बड़े कर्मचारी थे वे सब गिर गए। लेकिन जो आज प्रार्थना में लगा है वे जीरो से उठ के आज हीरो बन गए हैं। आमीन। वो प्रार्थना हम लोगों को दिखाता है कि प्रार्थना करने वाले कभी बिखरेंगे नहीं, प्रार्थना करने नहीं करने वाले गिर जाएंगे। तो जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है। प्रार्थना हम जब भी पाए तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दानियल के देखो वचन कहता है दानियल चैप्टर 3 में, वो 3 बार प्रार्थना करता रहा क्योंकि वो उसके नौकरी करना रहा, इसलिए वो 3, लेकिन 3 के रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा वो प्रार्थना करता रहा। जब दानियल के ये लोग उसके चाहने वाला राजा जो था, राजा डारियस के आके दिमाग को गुमराह किया कि राजा ये कानून हम लोग बनाया जाए कि कोई भी प्रार्थना नहीं करे किसी और परमेश्वर की। और राजा बड़ा खुशी हो गया कि हाँ अब हमार प्रार्थना हुई, सब कोई हमारे बारे में प्रार्थना करिए और हम ये लोग हमें चाहे, अब हम परमेश्वर हो गया। बल्कि दानियल परमेश्वर के प्रार्थना करने से रुका नहीं,
वो अपना परमेश्वर के प्रार्थना करता रहा। और इस कानून के कारण परमेश्वर ये लोग आदेश दिया दानियल को शेर के पिंजड़े में फेंका जाए, क्योंकि वो कानून को तोड़ा है। दानियल नहीं कहा कि हमें एक मौका दो, हम प्रार्थना कर ले। दानियल पहले से प्रार्थना करके तैयार रहा। दानियल हमेशा प्रार्थना करता रहा, इसलिए दानियल जानता रहा कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ये वो चाबी लेकर जाता है जो खुला शेर के मुंह को बंद करेगा। और जैसे शेर के पिंजरे में भेजा गया, हर एक शेर के जुबान फरिश्ते आकर बंद कर दिया। वे लोग अंधा हो गए, एक दूसरे को नहीं देख सकते। आज हम प्रार्थना करता है, हम लोग प्रार्थना करता है, हम विश्वासी लोग प्रार्थना करता है, हमें अपना प्रार्थना पर भी विश्वास नहीं। हम गेस्ट लाइन सुनी सुना प्रार्थना करते हैं। हम ये नहीं विश्वास करते कि हम प्रार्थना करेगा कि ऐसे होगा या नहीं होगा। प्रेयर इज नॉट अ फिशिंग लाइन। प्रार्थना वो मछली मारने वाला डोरी काटिया नहीं है। चलो ट्राई करें, फेंके, मछली मिल गए तो मिल गए, चलो प्रार्थना करें, बन गए काम तो बन गए। तुम्हारा विश्वास के प्रार्थना कभी खाली नहीं जाए। और जब भी हम कभी प्रार्थना करता बीमार लोग के लिए, हम एक आश्वासन दिलाता है, हम 101% गारंटी के साथ कहता आप चंगा होगा। और मैंने कई ऐसे बीमारों को देखा चंगा होते, कई लोगों को जो चल नहीं पाते 3 इयर्स 4 इयर्स से उठकर चलते हैं। ये प्रार्थना ये हम नहीं करता, हमारा कम्युनिकेशन जो परमेश्वर से है, आपका कम्युनिकेशन जो परमेश्वर से है वो काम करता है। आमीन। हम जितना भरोसा इस फोन पे रखते हैं, वो हम कॉल करेगा हमारा आंटी के लगे हमारा काम बन जाए, हम कॉल करेगा अंकल के लगे हमारा काम बन जाए, उतने भरोसा हम लोग अपने प्रार्थना पर रखे कि हमारा प्रार्थना के जवाब परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग देखता है कि बहुत जगह टाइम हम लोग देखता है, अपना समय हम लोग प्रेयर में बहुत कमती देता है। वचन हम लोग के यहाँ पर कहता है, मार्क 11:22 में 11:24 में कहता है, therefore I tell whatever you ask for in prayer believe it। तुम विश्वास करो जब तुम प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जॉन चैप्टर 14:14 में फ्लूक लाइन प्रार्थना नहीं मांगी, वचन कहता है जॉन चैप्टर 14:14 में, यदि यीशु मसीह कहता है यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। आमीन। हम लोग कैसे सकता मांगे? एक प्रार्थना के द्वारा। जब हम लोग प्रार्थना रखता है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वहां से जवाब आता है। कभी तुम्हारा प्रार्थना खाली नहीं जाएगा। हाँ, यदि तुम्हारा प्रार्थना के मांग का मकसद कुछ और है तो परमेश्वर उसके लिए। कभी कभी हमारा प्रार्थना, आज हम प्रार्थना करते हैं, बयान हमें जवाब मिल जाता है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक मिनट में मिल जाता है। कभी कभी समय लगता है। परमेश्वर हम लोगों को भी वेट करना सिखाता है। जैसे एक किसान खेती करके उसको इंतज़ार करता है, वो जानता अपना समय पर वो फल हमें मिलेगा। और कोई में 3 मंथ्स लगे, कोई में 6 मंथ लगे हैं। वो एक विश्वास की आशा लेके बैठा है कि जो बोया हुआ बीज है उसके द्वारा फल मिलेगा। इसी तरह से हम लोग के जो प्रार्थना है उसका जवाब आएगा। बस हम लोग के काम है इंतजार करो। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखता, कभी कभी हम लोग प्रार्थना करता है,
मैंने पहले कहा हम लोग देखता कि हम लोग प्रार्थना करता पर अपने ही प्रार्थना पर हमें विश्वास नहीं है। पीटा प्रिजन में रहा और उसके जो कलिसिया के मेंबरान रहा, जो उसके साथी लोग रहा, इकट्ठा होकर एक जगह पर प्रार्थना कर रहे थे और पीटा प्रिजन में रहा। हम लोग देखता है रात्रि के ये दरवाजा फरिश्ता आया पीटा के पास और उसके दो ताला चाबी के द्वारा खुला। हथकड़ी जो बीड़ी था बंद था वो खुला और यही फरिश्ता उसको निकाल के उसी दरवाजे से जहां पर चार चार करके जो प्रिजन वार्डन्स थे रखवाली कर रहे थे पीटा के, और पीटा को निकाल के लेके गया। उतनी देर के लिए ये लोग सो गए, पीटा जागता रहा। और जब पीटा जहां पर प्रार्थना होता रहा वहां पर पहुंचा और दरवाजा के खटखटाया। जब दरवाजा को खटखटाया एक छोटी लड़की दौड़ते आया दरवाजा खोलने के लिए, जिसका नाम रोडा था, और ये जान गया कि ये पीटा है, ये पीटा अंकल है, और दरवाजा खोलने की कोशिश किया। फिर से लौट के गया कि पीटा अंकल दरवाजा पर आ गया है। पर जितने लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे उनके खुद नहीं विश्वास हुआ कि हमारे प्रार्थना की जवाब आएगी। ऐसे कभी कभी हम लोग प्रार्थना करता है, ये कैसे होगी? ये तुम्हारे प्रार्थना की जवाब है, तुम इसे स्वीकार करो, ये तुम्हारा प्रार्थना के जवाब है। आज हम बताएं मांगता है, जब पीटा के वे लोग दरवाजा खोला तो देखा सही है पीटा। परमेश्वर तुम्हारे पास कौन प्रॉब्लम है, आज अपना प्रॉब्लम लेके दुनिया के लोगों के लगे दौड़े से अच्छा है अपना परमेश्वर के पास लेके दौड़ो। वो परमेश्वर हमारे और तुम्हारे प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, उसके कान हमारा और तुम्हारे लिए खुला है। हम कभी कभी कॉल करते हैं, यहाँ से फिजी कॉल करता अपना कलिसिया के मेंबरान के लिए या अपना परिवार के लिए, अपने घर के बारे में पूछने के लिए, अपने कलिसिया के हालात को पूछने के लिए, तो कॉल कर देता है डायबिटेड, दिस कॉल इज बीन डायबिटेड। मगर आप कभी ये नहीं सुनेगा कि परमेश्वर के जब आप लाइन लगाएगा, कभी आप नहीं सुनेगा कि ये कॉल डायबिटेड है। परमेश्वर के कान हमेशा हमारे और तुम्हारे आवाज के लिए खुला है, और परमेश्वर हमेशा तुम्हें और हमें अपना उत्तर यानी अपना जवाब को देने के लिए तैयार है। एक जहां पर हम पहले मियाँ पता नहीं बताया कि एक जहां पर हम गया प्रार्थना करने के लिए सुबह से बनवालेवू, और जब हम वहां पर गया तो हमें एक रूम मिला अलगे से रहने के लिए, और जिस रूम में एक लाइट नहीं रहा और उस रूम के दरवाज़ा भी टूटा रहा, डबल डोर रहा। एक वहाँ पे आगे रहा तो फिर ऐसे प्रेशर पकड़ के आएगा, फिर तब हमारे पास तुम आएगा। और उससे पहले भैया हमें संजा के खूब बताई, यहाँ पर लाइट चली, बोले तुम डरना नहीं, ऐसे जाई वैसे जाई, तुम डरना नहीं, और ये लोग के कुछ वरी नहीं करना, ये लोग के जान देना लाइट आलन के। तो हम बोला ये लोग है कौन सी? तो बोले शैतान लोग है, यहाँ पे चले। और उसके बीबी बहुत बीमार रहा, लगभग 6 years से। और जब हम लोग गया 12 o'clock, उसके पत्नी बीमार हो गई। वो आई, पहला डोआ खोलिस और डोआ थोड़ा टूटा रहा, डोआ करिस और भाई का बिग साउंड डोआ। और हम बोला आई गई यही शैतान जो पता रहा। अब हिम्मत नहीं पड़ेगा कि हम उठ के प्रार्थना करी, हिम्मत नहीं पड़े कि हम उठ के फोन उठा के लाइट बार ले, कुछ नहीं है, दिल करे। अब तो हम बोला आवे, अब तो आवे, पहला डोआ तो खोल दी, अब तलक तो सेकंड डोआ में खोलिस। बोले ब्रदर
बोले वहीला चीज आएगी, वो बीमारी अटैक करता रहा। ये एक विश्वासी व्यक्ति रहा, और विश्वासी व्यक्ति हम लोग जब उसके प्रार्थना करा और उस प्रार्थना के द्वारा ये बीमारी उसी दिन वहां से निकला, और आज तक लौट के कभी वो बीमार नहीं भई। जब हम कभी प्रार्थना करें दोस्तों, हम चाहता है कि हम लोग एक विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करें कि हमारा परमेश्वर आज हमें उत्तर देगा, हमारा परमेश्वर कभी हमें खाली नहीं छोड़ेगा। आमीन। अपना समय दे, अपना बाइबल रीडिंग में दे। हम लोग देखता है, कभी कभी हम लोग देखता है, एक चीज हम बताए मांगता विश्वासी लोग के, ये जितना जहां भी जाए, जो तुम्हारा पादरी है, जो तुम्हारा प्रोफेट है, जो तुम्हारा पादरी, ये परमेश्वर तुम्हें दिया है, और तुम अपना शिकायत उसके पास लेके जाओ। आज हम लोग यहाँ बयान हुआ, परसों हुआ, दूसरा हफ्ता हुआ, तीसरा महीना हुआ, हम लोग लॉस्ट है। जब हम अपना प्रॉब्लम अपना नबी के पास ले आता, परमेश्वर मूसा के लोग जो इजरायली लोग रहा, वे अपना कंप्लेंट सिर्फ खाली मूसा के लगे लेके जाता रहा, और कोई के लगे नहीं लेके जाता रहा। ए मूसा, परमेश्वर का हम लोग के संग ऐसे कर दी। जब परमेश्वर इन लोगों को इजरायली से निकाला, याद रखना, जब परमेश्वर इजराइल से मिस्र देश से इन इजरायलियों को निकाला, आजादी से दिया, फ्रीडम दिया। आप लोग देखना, जब ये लोग लाल समुद्र के आगे गए, जहां पर अब तो मार डालेंगे, ये करेंगे, गिड़गिड़ाना शुरू किया, और वे लोग कंप्लेन करना शुरू किया मूसा के पास। और मूसा तुरंत प्रार्थना में गया, और परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा, हम सब कुछ सुन लिया है, लोग कौन सी बोले, लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना के जवाब दी से, उस कुड़कुड़ाहट के जवाब नहीं दी से। They were grumbling. God did answer because they were grumbling. God answered because Moses prayed. Right? मोसेस के प्रार्थना के द्वारा मोसेस से परमेश्वर पूछा, लाठी है तुम्हारे पास, टैलेंट है तुम्हारे पास, और उसी के द्वारा समुद्र दो भाग हुआ। आज हम बताए मानता है, जो परमेश्वर जिस भी कलसिया में तुम्हारा पास पादरी है, जाओ बैठो, 10 मिनट बैठो, उसके साथ टाइम निकालो, कभी कभी कॉल करो, सलाह लो कि पादरी हमें ये चीज करेंगे, तुम हमारे साथ हो जाओ प्रार्थना में। हमारे कलसिया के लोग हमसे बता दी, तुम लोग हमें एक रोज एक घर बुलाओ, तो हमें 2 घर एक रोज बुलाई खाना खाए के लिए। 2 मेंबर एकदम 100% बुलाई कि तुम आज हम घर रहना, कल लास्ट वीक तुम वहाँ के घर गया, ये हफ्ता तुम वहाँ गया, ये हफ्ता तुम हमारे घर आना, और हमारे घर आके प्रे करना। प्रार्थना एक सामर्थ्य है दोस्तों। प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह भी हम लोग के सिखाया है। इसका मतलब है प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने हमें वो चाबी दे चुका है, जो जिससे हम बंद ताला को खोल सकता है और बंद खुले पेडलॉक को बंद कर सकता है। आमीन। ये है प्रार्थना पर अपना प्रार्थना जारी रखे, सुबह उठे प्रार्थना करे, सब कुछ समय दे परमेश्वर के। परमेश्वर हम जानता है कि हम लोग कभी कभी हम लोग काम करता है, नौकरी करता है, हम लोग उतना नहीं सकता करे, पर हम लोग के पास समय होना चाहिए कि परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें। सो धन्यवाद है आप सबके। और हम यहाँ से जब जाएगा, कल जब आप लोग प्रार्थना करना, तो हमारे लिए भी प्रार्थना करना कि हम लोग सही सलामत हम लोग पहुँच जाइए अपना देश फिजी, और हम लोग आप लोग के लिए भी प्रार्थना करेगा। और धन्यवाद है पादरी।
Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद है इस वचन के लिए. Just want to thank the Lord for his this word about prayer. And when we read the scripture here, and it says, verse 26, it says, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison house were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's bands were loose. If you go into in-depth study, ये earthquake सिर्फ उसी जगह पे आया. It was not like पूरा area में नहीं रहा. It was in that place only, right? See, these two people, Paul and Silas, they were praying, and it says at midnight, 12 बजे रात के, कोई बोली कि 12 बजे रात के चलो प्रार्थना करेंगे. हम पहले चीज इसके स्क्रू ढीला हो गया है और स्क्रू गिर गया है. लेकिन यहाँ पर see again, whenever we feel like praying, कभी कभी हमें ऐसा होता है when I'm sleeping and I wake up all of a sudden and I have certain people's name in my mind, and this is what the Lord has taught me, to start praying for that person. So many times I've heard testimonies कि परमेश्वर कैसे उन लोगों को बचाया. जिस समय हम प्रार्थना कर रहे थे उस समय वो लोग ऐसे घटना में थे और परमेश्वर उन लोगों को बचा लिया. And God was able to save them because we stood in that gap. God is looking for believers to stand in the gap, to pray for each other, intercede for each other, right? एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करें. And here इसमें कहता है immediately all the doors were open and everyone's bands were loose, right? Everyone. Sir Paul and Silas? No. Every person that was in that, every prisoner that was there. See, again, जो प्रार्थना हो रहा था, ये तेजी से प्रार्थना करते हैं. It was not a silent prayer. They were singing and praising God, and they started and praying, right? And the people that were there, ये लोग सुना, they were part of that thing, right? परमेश्वर की जब आशीष आता है, it doesn't only stay with us, it spreads beyond us, right? जो लोग वहाँ पर थे, they found blessing in this, right? और जो jailer था, जो prison warden था, being aroused out of sleep and seeing that the prison doors were open, drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. See, prisoners had escaped. Not those, just only the two of them. All. His life was in danger. क्योंकि अगर जो वो prisoners वहाँ से भाग गए तो इसके तो मौत है. So he said, no, I don't want to be caught in the hands of the authorities. I'll just go myself, right? He wanted to commit suicide. But Paul and Silas, they cried. But Paul cried with a loud voice saying, do thyself no harm, for we are all here. We are all, not some, all here. सब है वहाँ पर. So जहाँ पर परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के उपस्थिति रहता है, the presence of God basically, जहाँ पर रहता है, it doesn't just stay in that one place, it spreads. The presence of the Lord will spread. Amen. Hallelujah. जब हम लोग चर्च में आते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, when we're praising and worshiping God, and the presence of the Lord comes down. Praising and worshiping, prayer and all these things, it brings basically heaven down. तो वही बात हुआ यहाँ पर इस जगह पे. Prayer जो है, it is communicating with God. That is prayer. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए. इसमें से हम ढेर सीख सकते हैं, लेकिन I'm not going to go any further in. But यहाँ पर क्या है, यही है कि हम लोग अपना समय बिताए प्रार्थना में. I'm going to share a little testimony. 2 Wednesdays ago, at work, just after lunch, I started having blurry vision in my right eye. And I didn't know what was going on. And then all of a sudden I was having double vision. I didn't know what was going on. So I
kind of Googled, and I found that one of the main thing could be a stroke. So I checked myself, like I said, no, stroke, it's not stroke. So by afternoon, it was time to come home. For 4 o'clock, I left work, and I'm driving, and I'm getting double vision. So I had to close my right eye and drive with one eye home. And I'm driving on the highway basically. And I said, Lord, I need to get home. The Lord brought me home. And I was praying. I said, what's going on? I had no answer. And then in the evening, Stephanie came and Ezekiel came, and they took me to St. Paul's Hospital. They did all the tests, blood tests and everything for virus or anything. And they did CT scan. If there was something in my brain that was affecting it, nothing. Everything was clear. They didn't know what was going on. But one thing I knew, the Lord was in control of everything. So they said, we'll refer you to the eye department at VGH. So next morning around 9 o'clock, they called me and they said, could you come at 11? And I'm thinking, oh, how am I going to get there? So my wife says, I'll call Stephanie. And she says, yeah, we'll come and take him there. So about 10:30 we were there. They took me in. 2 doctors, they did all that diagnosis. They went far beyond what they were supposed to do. And they're doing this. We don't know what's going on. Everything looks normal. But they said the only thing we can see, it's your right vision is lower than the left, and it's deviated to the left. And I turned around and I smiled at them and I said, I could have told you that. And they started laughing. It was a time of just having a little laughter basically. And they said, let's see if we can get you an appointment upstairs. And I'm going, upstairs? No. Another floor, there is another department above these people who specialize in what I was going through. So they gave me an appointment, which is in September 3rd. And I'm going, okay, that's a long ways off. So I was coming home and I was praying, and the Lord said, you will start getting your vision in 1 week's time. पादरी ने कहा, इंतजार प्रार्थना करो और इंतजार करो. See, this was a situation I was not willing to wait, but I said, Lord, I will wait 1 week. And Wednesday, I was able to see much better, and I went to work. One day, actually, one of the guys from my work, they came and picked me up just to get things going. And they put me in a cab to come home basically, and it cost like $65 from my work to my home, and the company paid for it. And said, don't worry about anything, you just go home and rest up. So I just thank the Lord. And now I've got my vision back about 80%. I can see clearly, but when I'm driving, that's when it affects me a little bit. When I'm turning, it takes a little longer to focus. But I know, as the Lord has promised, and He said, you will get back your vision in 2 weeks' time. So 2 weeks will be coming Wednesday. And I know God is going to honor what He has said. Our God is good, and He's going to do it. He has done it for me before, and He will do it for me again. So one of the thing is, the key thing जैसे आज के message में है, प्रार्थना, prayer is the key that will open every lock. It will break every bondage. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your words of encouragement, O God Almighty. We ask you to bless it, O Lord. I pray for your servant, O God Almighty, as he has brought out this message, Lord, for all of us, O God Almighty, to remind us that we need to spend time in prayer and have fellowship with you. Hallelujah, Jesus. Not just knowing you, Lord, but to have fellowship with you. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Yes, the Lord wants to have fellowship, not just us knowing Him, but He wants to have fellowship with us. Amen. We'll sing one song and then after that we'll finish it. बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है, रूही बारिश बरसा चाहती है, शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है, शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको
बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद का शिफा आती है। उसका यही मतलब है, इस उर्दू में उसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति हमारे बीच में है, it will bring that joy, it will bring that infilling, it will bring joy in our lives, basically blessings of God in our lives. उस पर नजर कर ले, शिफा ले ले। शिफा का मतलब है salvation, basically. अपने मसीहा से ले ले शिफा। Only Jesus can give us that salvation through His grace. Right? उसके सलीब से ले ले शिफा। The story of the cross, basically. उसके लहू से। It is the blood of Jesus that cleanses us from all unrighteousness. Hallelujah. जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, बाइबल में बताता है pray without ceasing. इसका ये मतलब नहीं है कि एक जगह बैठ के रातों दिन प्रार्थना करते। नो, being in the presence of God, having fellowship with the Lord. तो अपना काम करेगा, जो कुछ भी करेगा, but being in the presence of the Lord. ये कैसे हो सकता है? दिमाग से, in the spirit. They that worship Him must worship Him in spirit and truth. For God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो हमारे अंदर भी रहता है। Is He residing in you? It's time to think on these terms. Amen. Father, we thank you once again this afternoon, Lord. We pray for your blessing as we go out from here, Lord, but not from your presence, O God Almighty. I thank you for everything that you have done for us, Lord, and what you have taught us today, O God Almighty, reminding us, Lord, that you just don't want us to know you, Lord, but to have fellowship as well, O God Almighty. And I thank you once again, O God Almighty, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all, and we'll see you on Wednesday night. Until then, the Lord be with you.